Good morning. I am Harshita Singh from class 12th standard from RLS Convent School. We had organized a program, science exhibition, and we are going to perform. Let's see. We have made this smart home project in which we have compiled up 3 different projects in our single project. Number 1 is using raindrop module. We have made raindrop sensor. Like when you are inside the home, you don't know there is rain outside the home on the roof. We have made using raindrop module. We have made raindrop sensor. Whenever the rain comes, the buzzer automatically starts sounding, and you can also switch it off using the switch. But until that water is on the raindrop module, it will start buzzing, and when the rain is gone, it will automatically off. यानी इनके कहने का मतलब है कि जैसे हम अपने घरों में सो रहे होते हैं और हमें पता नहीं होता कि हम अपने छत पर क्या फैलाए हुए हैं, और बारिश आ जाती है हमें पता नहीं चलता है। तो ऐसे में इन्होंने सेंसर लगाया हुआ है कि अगर बारिश आती है तो यहाँ पर अगर एक रेन ड्रॉप पड़ता है तो तुरंत ये अलार्म बजने लगता है और हमें पता हो जाता है कि बारिश आ रही है, और हम अपने कपड़ों को या अपने जो भी चीज़ों को छत पर रखे हुए हैं उसको हटा सकते हैं। और सेकंड थिंग इन्होंने बनाया हुआ है एक लाइट है। लाइट के बारे में निधि दुबे से जानना चाहता हूँ, क्या है ये चीज़? गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ निधु बे। ये ऑब्स्टिकल सेंसर है। इससे क्या होगा कि कोई भी आपके घर में आएगा तो आपको इससे पता चल जाएगा कि कोई घर में आया है। ये सेंस करता है। कोई भी आपके घर में आएगा तो इससे ये बजेगा और आपको पता चल जाएगा कि कोई घर में आया है। तो ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम बाउंड्रीज़ पे यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि कोई भी थीफ आएगा आपके घर में तो आपको पता चल जाएगा कि कोई आया है या कोई भी चोरी हुई है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं भाई। देख सकते हैं कि जैसा कि ये स्ट्रीट लाइट है, स्ट्रीट लाइट का इन्होंने इंपॉर्टेंस बताया हुआ है कि जैसे दिन में देखते हैं कि लाइट जलती रहती है और इस तरह से हमारा इलेक्ट्रिक जो होता है वेस्ट होता है। इन्होंने बनाया हुआ कि अगर दिन में लाइट ऑटोमेटिक ये ऑफ हो जाएगा और जैसे ही शाम होगा ये लाइट जलने लगता है। जैसा कि यहाँ पे प्रैक्टिकल किया जा रहा है, इन्होंने हाथ रखा हुआ है। अब जैसे थोड़ा सा अंधेरा हुआ है तो ये लाइट जलने लगी है। अब Welcome you all here, and we are firstly I want to say that we are from commerce batch, and we had made a model on the consumer responsibilities. So here we had explained mainly 4, that is aware consumer, eco-friendly consumer, ethical consumer, and evidence-full consumer. In aware consumer, if we purchase any goods from shop, then we have to tell the consumer that whatever its benefit, whatever that it could give you, it's not harmful for you or helpful for you. And next one, that we have to prefer him, most tell him that it is eco-friendly in nature or not. The good, most of the goods which is consumer buy from the shop, that is wrapper in the polythene in the that was not biodegradable. So we have to aware them that they have to purchase carry any paper bag or any handmade bag to carry their products. In third one, the third one is evidence-full consumer. Here we describe if a consumer buys anything, he must ensure that he taken a cash receipt, cash memo or receiving, which helps him in future if there is any problem with that particular good. He must ensure that through the upper authorities he must claim or case against him in the future. That's all, man. Thank you.
My project consumer rights. A consumer what to do from a firm or a business. जैसे उपभोक्ता के ऊपर कई भी उसके बहुत सारे उसके अधिकार होते हैं, उसके कई अधिकार हमने यहाँ पर लिखे गए हैं। पहला है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, मतलब कि शिक्षा के ऊपर आपका क्या क्या अधिकार है, आपको ये पूरी नॉलेज होनी चाहिए। कहीं वो यूनिवर्सिटी आपसे चीट तो नहीं कर रही, पूरी नॉलेज आपको दे नहीं रही है, तो उसके लिए भी कई राइट्स होते हैं, आपको उसके नॉलेजेबल होना चाहिए और उसके ऊपर हेल्पलाइन नंबर भी होते हैं, आपको उसे कॉल करना चाहिए। नेक्स्ट है राइट टू चूज़, मतलब आपको अपने ऊपर खुद का अधिकार होना चाहिए कि आप कौन सा प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। जैसे एक कंपनी ने आपको कहा कि आप डव का प्रोडक्ट खरीदिए, लेकिन आपका मन है कि मैं दूसरा साबुन यूज़ करूं, तो आपको जो आपको अच्छा लगे उसी को यूज़ करना चाहिए। कंपनी के बहकावे में कभी नहीं आना चाहिए। आपकी अपनी खुद की राइट्स, अपना खुद का अधिकार है। नेक्स्ट राइट टू बी सेफ्टी, सेफ्टी के लिए आपका ये जैसे जो प्रोडक्ट आपके लिए अच्छा बेनिफिट दे रहा है, जैसे आपको पैर में चोट लगी है, आपको ये वाला मेडिसिन ज़्यादा बेनिफिशियल लग रहा है अप्रॉक्स दूसरे मेडिसिन से, तो आपको यही लेना चाहिए। अगर इन तीनों से कोई गलती हो रही है, इन्होंने अपने कोई गलत प्रोडक्ट आपको बाय करा दिए, तो आपके पास है राइट टू सीक ए कंपनसेशन, आपको कंपनी खुद कंपनसेशन देगी। अगर उसने गलत प्रोडक्ट किया तो वो आपको कंपनसेशन देगी। फॉर एग्जांपल एक कंपनी थी फेयर एंड लवली, फेयर एंड लवली ने कहा था कि हम 7 दिनों में आपकी ग्लोइंग स्किन बना देंगे, लेकिन एक पर्सन ने उसको बाय किया मगर उसकी स्किन में कोई ग्लोइन नहीं आई, तो उसने कंप्लेन कर दिया था। 5 रुपये की उसने खाली इन्वेस्ट किया कंप्लेन करने में, फाइल कोर्ट तक पहुंचाई और कंपनसेशन कंपनी ने उसको 1 लाख का दिया। तो आपको पता होना चाहिए कंपनसेशन कैसे मिलता है। राइट टू बी हियर्ड, आपको अच्छे से एडवर्टाइजमेंट को सुनना चाहिए, उसने कंपनी ने क्या बोला है। थर्ड राइट टू बी इन्फॉर्म, आपको पता रहना चाहिए जो प्रोडक्ट आपने ख़रीदा है उसका काम क्या है और उसका क्या वर्क करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे पेरेंट्स जो हैं हर